This is the sagittal section of head and neck, and this is the sphenoidal air sinus. Okay, and this is the sella turcica, and this is the pituitary gland. Okay, ये हमने cranial cavity में भी देखा था. So this is the sella turcica, this is the sella turcica, and this is the pituitary gland. ये जो इसके नीचे है sphenoidal air sinus. Okay, तो ये जो है वो sphenoidal air sinus है पूरा. Okay, तो जो sphenoidal air sinus है, it opens into the upper part of the superior meatus. कुछ बुक्स में सुप्रीम meatus भी लिखा हुआ है, तो it opens through the anterior wall into the supreme meatus. Okay, और ये जो दिख रहे हैं, these are the concha. Okay, this is the superior nasal concha. This is the sagittal section of head and neck. Okay, this is the sphenoidal air sinus. Okay, and above this sphenoidal air sinus, here is the sella turcica, which contains the pituitary gland, and this sphenoidal air sinus through anterior wall opens into the upper part of superior meatus. Okay, and this is the nasal cavity. Anterior part of nasal cavity is known as vestibule. Okay, this nasal cavity is divided into three parts by conchae or terminate. So this is the superior nasal concha, this is the middle nasal concha, this is the inferior nasal concha. Okay, when we reflect these concha, then we will find the meatus. So here is the superior meatus, and here is the middle meatus, and this is the location of inferior meatus. ये जो forceps जा रही है, it goes into the inferior meatus. This superior meatus on the anterior part receives the opening of posterior ethmoidal air cells, and in the posterior part it receives opening of sphenoidal air sinus. Okay, so when we reflect this middle meatus, we will find the ethmoida, ethmoid, bulla ethmoidalis. ठीक है, तो this is the bulla ethmoidalis. Okay, तो here is the opening of maxillary sinus. Okay, and आगे जो होंगी, here is the opening of middle ethmoidal air cells, and this middle meatus also contains the opening of anterior ethmoidal air cells. ठीक है, posterior वाली superior में है, middle और anterior middle and anterior ethmoidal air cells, they open into the middle meatus, and main जो opening है वो किसकी है, maxillary air sinus. Maxillary air sinus is the largest paranasal air sinus. Okay, and below the inferior concha is the inferior meatus, ये जो forceps disc में जा रही है. Anteriorly it receives the opening of nasolacrimal duct यहाँ पे. Okay, तो यहाँ पे ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टर्मिनेट्स या concha एंड द meatus ऑफ द nasal cavity. Okay, this is the oral cavity. So this nasal cavity and oral cavity are separated by the palate. Anteriorly palate is formed by the bone, therefore known as hard palate. Posteriorly formed by the muscles, so this is known as soft palate. Okay, तो anterior जो part है, it is formed by the two parts. तो anterior part is formed by the palatine process of maxilla, and posterior part is formed by the palatine bone. Okay, अच्छा. Then coming on the oral cavity, so this is the tongue. Okay, and this muscle is the genioglossus, because this is the mandible. और ये क्या है, a posterior surface of the mandible. तो here is the location of genial tubercles from which this genioglossus arises. ओके, तो ये जो थी नेज़ल कैविटी थी, नेज़ल कैविटी के पीछे जो पार्ट है, दिस इज़ दी नेज़ोफैरिंक्स. इसी तरीके से ओरल कैविटी के पीछे जो होगा, ओरोफैरिंक्स. ओके, अब ये जो यूवुला हम हटाएंगे, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज यूवुला. ठीक है, तो हेयर यू विल फाइंड दी पैलाटाइन टॉन्सिल. दीज आर दी पैलाटाइन टॉन्सिल. ओके, और टंग के पीछे क्या होंगे, हेयर इज दी लोकेशन ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल्स. ठीक है, क्लियर इतनी बात. ओके, एंड दिस पार्ट कौन सा पार्ट है, दिस इज दी ओरोफैरिंक्स. ओके, और इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा वो होगा लैरिंगोफैरिंक्स.
एंड लैरिंगोफैरिंक्स विल कंटिन्यू इन द ईसोफेगस। ये वाला जो दिस इज द लैरिंगोफैरिंक्स एंड इट विल कंटिन्यू इन द ईसोफेगस। ओके, अब ये जो दिख रहा है दिस इज द लैरिंक्स, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द एपिग्लॉटिस एंड दीज आर द पाइरिफॉर्म फोसे। ओके, एपिग्लॉटिस खाली आगे होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पीछे क्या होती है? एराइटिनॉइड कार्टिलेज। ओके, तो एपिग्लॉटिस से एराइटिनॉइड कार्टिलेज तक एक फोल्ड जाता है, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, बताया भी था मैंने पहले भी जब पढ़ाया था। और जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हेयर यू विल सी द टू फोल्ड्स, ठीक है। जो ऊपर दिखाई देगा दिस वन इज द वेस्टिब्यूलर फोल्ड, ठीक है, अभी दिखा दूँगी मैं आप लोगों को। और इसके नीचे जो होगा वो होगा वोकल फोल्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है वेस्टिब्यूलर फोल्ड, दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके नीचे जो होगा वो होगा वोकल फोल्ड्स। ओके, तो ये हो गया। देन देख लेते हैं एंटीरियरली क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें। एंटीरियरली हेयर यू कैन सी दी थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, ये जो है दिस इज दी थायराइड कार्टिलेज एंड दिस इज दी क्रीक्वाइड कार्टिलेज, ठीक है। और फिर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? ट्रैकिया विल कंटिन्यू। ओके, तो दिस इज दी ट्रैकिया। और यहाँ पे क्या दिखाई देगी? थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड कार्टिलेज हो गई, क्रीक्वाइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड। ओके, इन दिस सेक्शन यू कैन सी दी लैरिंजियल कैविटी ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज़ दी एपिग्लॉटिस, बताया ही था अभी मैंने। एपिग्लॉटिस के साइड में क्या है? पाइरिफॉर्म फोसा, ठीक है। ये हो गई एराइटिनॉइड कार्टिलेज। तो यहाँ से ये जो फोल्ड जा रहा है दिस इज़ दी पाइरिफॉर्म फोसा। ओके, एंड दिस इज़ दी एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये जो है एपिग्लॉटिस है, यू कैन फील कार्टिलेजनस है, ठीक है। तो दिस इज़ कार्टिलेजनस। और फोल्ड को फील करो तो दिस इज़ लाइक अ फोल्ड, क्योंकि ये मसल से बना हुआ है, मस्कुलर फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। यस, दिस वन, ठीक है। ये होगा हमारे कॉर्निकुलेट और क्यूनाइफॉर्म ट्यूबरकल्स, ठीक है। अब हेयर यू कैन सी द वेस्टिब्यूलर फोल्ड, दिस इज़ द वेस्टिब्यूलर फोल्ड, दिस इज़ द वोकल फोल्ड। तो वेस्टिब्यूलर फोल्ड के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? सुप्राग्लॉटिक पार्ट। वोकल फोल्ड के नीचे वाला पार्ट इंफ्राग्लॉटिक पार्ट। इन दोनों के बीच यानी कि वेस्टिब्यूलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? ग्लॉटिस, ठीक है, दिस इज द ग्लॉटिस। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा एपिग्लॉटिस हो गया था। ये क्या हो गई? हमारी एराइटिनॉइड। ये क्या हो गया? क्रीक्वाइड कार्टिलेज, ये वाली जो है। फिर उसके नीचे शुरू हो जाएंगी ट्रैकियल रिंग्स। ओके, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे हेयर यू कैन फील दी हेवाइड बोन हेयर, यहाँ पे ये जो है टंग के नीचे, ये क्योंकि जीनियो हेवाइड भी मसल होती है विच ऑल्सो फॉर्म दी पार्ट ऑफ टंग, ठीक है, वन ऑफ द मसल ऑफ द टंग। तो हेयर इज दी, ठीक है, कौन सी बोन है? हेवाइड बोन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द लैरिंग्स। अच्छा, यू कैन सी द मीडियल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये एपिग्लॉटिस है, ये टंग है, तो यहाँ से ये वाला जो फोल्ड जा रहा है दिस इज़ दी मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। और जो टंग से लेटरल साइड ऑफ एपिग्लॉटिस को जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। तो अभी मैं और दिखा देती हूँ आप लोगों को। दिस वन, दिस इज़ दी लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। एंड दिस वन इज़ दी मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी द ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। तो हेयर उस वाले स्पेसिमेन में अच्छी दिख रही थी, वो ले आना, अभी दिखा देते हैं। एंड हेयर यू कैन सी दी वर्टिब्री, दीज आर दी वर्टिब्री एंड दीज आर दी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दिस इज़ दी वर्टिब्रल कैनाल एंड दीज आर दी स्पाइनल नर्व्स। ओके, तो इन दिस स्पेसिमेन you can see the opening of eustachian tube here. This is the opening of eustachian tube here. ठीक है, तो दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। यस, ये हो गई टंग हमारी, ये ओरल कैविटी है, ठीक है। ये पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, तो जिसमें फॉर्सेप डाली है मैंने
this is the opening of eustachian tube. Clear इतनी बात? Okay. You can see this is the fold of dura mater. ठीक है, तो this is the superior sagittal sinus. ये पकड़ लो बेटा, एक इधर 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 से बस. This is the superior sagittal sinus. और ये क्या है? Falx cerebri. This separates the two cerebral hemisphere. ठीक है, फिर ये जो पीछे है, दिस इज़ दी, ये इस तरीके से आएगा, दिस इज़ दी फाक्स सेरिबेलाई. ओके, और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है टेंट लाइक, दिस इज़ दी टेंटोरियम सेरिबेलाई. ठीक है, दिस इज़ दी टेंटोरियम, ये इस तरीके से आएगा ना, तो दिस इज़ दी टेंटोरियम सेरिबेलाई. ठीक है, और ये इस तरीके से होगा ब्रेन में, इस तरीके से. ठीक है, तो ये फाक्स सेरिबेलाई हो गया, टेंटोरियम सेरिबेलाई हो गया और फाक्स सेरिबेलाई हो गया. ठीक है, और यहाँ पे क्या था हमारा? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, कल भी बताया था. और यहाँ पे क्या था? इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस. और यहाँ पे क्या था? स्फीनोपेराइटल साइनस. ठीक है, और यहाँ पे क्या था? सिग्मोइड साइनस. ठीक है, विच कंटिन्यू एज द इंटरनल जुगुलर वेन शायद. ओके, अब यहाँ पे जहाँ पे ये जॉइनिंग है टेंटोरियम सेरिबेलाई की इस वाले ड्यूरामेंटर से, यहाँ पे क्या लाई करेगा? ट्रांसवर्स साइनस. ठीक है, एंड हेयर इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरल वीनस साइनसेस, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? दिस इज़ द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. ठीक है, तो हेयर इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल ड्यूरल वीनस साइनसेस. ठीक है, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ नेजल सेप्टम. ठीक है, तो ये जो है सुपीरियर पार्ट है, ये इन्फीरियर पार्ट है. सुपीरियरली कौन सी बोन होती है? एथमॉइड. तो यहाँ पे ऊपर से कौन सी आएगी जो नेजल सेप्टम फॉर्म करेगी? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन. ठीक है, और पीछे से एक सेपरेट बोन आती है, दैट इज़ दी वोमर बोन. यहाँ पे हो गई. ठीक है, ये पैलेटाइन बोन है. ठीक है, तो ये ऊपर की साइड क्या देगी? परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन. फिर आगे क्या आएगा? नेजल क्रेस्ट. ओके, और जो एंटीरियर पार्ट है नेजल सेप्टम का, इट इज़ फॉर्म बाय द कार्टिलेज. यहाँ पे आ जाएगी सेप्टल कार्टिलेज. ओके, और उसके आगे आ जाएगी मेजर एलआर कार्टिलेज, और उसके आगे आ जाएगी माइनर एलआर कार्टिलेज. ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ऊपर आ गई परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन. ठीक है, और नीचे छोटी सी आ गई परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलाटाइन. ठीक है, और बड़ी सी कौन सी आ गई? वोमर बोन. ठीक है, थिन होती है बहुत, देख सकते हैं आप लोग. दिस इज़ दी वोमर बोन. ठीक है, और आगे जो आ गया वो आ गया सेप्टल कार्टिलेज. और यहाँ पे क्या आ गया? नेजल क्रेस्ट. ओके, उसके आगे जो यहाँ पे नहीं है वो क्या है? मेजर एलआर कार्टिलेज. और उसके आगे जो छोटा सा होगा वो होगा माइनर एलआर कार्टिलेज. ओके, और ये जो दिख रहा है दिस इज़ दी वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज. तो दिस इज़ अबाउट द नेजल सेप्टम.